Students, in today's video, we are going to revise rapidly important unit from chemistry known to be some basic concepts of chemistry. So for remaining chapters from physical chemistry, class 11 syllabus, as well as chapters from physical chemistry regarding class 12 syllabus, जैसे कि सॉल्यूशन होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, केमिकल काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सभी चैप्टर्स के लिए ये वाला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस यूनिट, that is various laws of chemical combination. So this is first important law in front of you. What is that? Law of conservation of mass. This law is also known to be law of indestructibility. So आपको स्कूल लेवल से पता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हमें शो करना है. जैसे कि केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड क्या होगा, रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड क्या होगा, प्रोडक्ट साइड. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेट अस टेक दिस सिंपल एग्जांपल. HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2O. अभी एटॉमिक मासेस सबको पता है स्टूडेंट. व्हाट हैपन इन केस ऑफ HCl, 1 plus 35.5, यहाँ पे सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, दिस इज इक्वल टू सोडियम 23, chlorine 35.5, and in case of water, 2 hydrogen each having 1 gram, oxygen 16. So this total comes equal to 36.5, यहाँ पे 40, this is equal to 58.5 plus water का mass कितना होगा, 80. So again, last step we are going to write here 76.5 equal to 76.5. So what we can write, student? Left hand side equal to right hand side. That is nothing but total mass of reactant. It is equal to total mass of product. So this is in accordance with first law, law of conservation of mass. Let us shift towards next point. Law of multiple proportion. Now, whenever we are going to explain this law known to be law of multiple proportion, what is condition in front of you? Two elements combines with each other to form at least 2 or more compound. Then what happen? Different masses of one element combine with fixed mass of another element in the proportion, and that proportion is always found to be simple whole number ratio. So in order to explain this law, check this particular example. आपको आसानी से समझ में आएगा from this example. This is first column regarding compound, second column fixed weight of nitrogen, third column different weight of oxygen, last column is proportion. So nitrogen के various oxides we are going to consider here. First one N2O, N2O2, N2O3, then N2O4, and finally what I am going to write, N2O5. अभी आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे फिक्स वेट ऑफ किसका लेना है हमें, नाइट्रोजन 14 2 28 ग्राम. वी आर गोइंग टू कंसिडर एवरीवेयर 28 ग्राम. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 16 ग्राम ईच. तो पहले केस में एक ही ऑक्सीजन है, वी आर गोइंग टू राइट 16, 32, 48, 64, यहाँ पे 80. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन यू आर गेटिंग, दिस वन. व्हाट वी कैन राइट, 1:2 1:3 1:4 1:5. So what you are getting here, simple whole number ratio. So this is according to law of multiple proportion. Let us shift towards another important law that is known to be law of definite proportion. Which law we are going to discuss here? Law of definite proportion, or it is also known to be law of constant proportion. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी फोकस करो, whatever may be the chemical substance under study, that chemical substance should be pure and it consists of same element combined in definite proportion independent of source and its प्रिपरेशन मेथड. यानी कि सोर्स कौन सा भी होने दो या फिर प्रिपरेशन मेथड कौन सा भी होने दो, सब्सटेंस प्योर होगा तो सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ. इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, H2O, प्योर वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. नाउ टेल मी प्रोपोर्शन स्टूडेंट. हाइड्रोजन each having 1, 2:16, or simply what we can write it as
1:8. सो प्योर वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा दो एलिमेंट दिखाई देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका कंबाइनिंग प्रोपोर्शन 2:16 और 1:8. एंड व्हाट अबाउट दिस इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन, सोर्स एज वेल एज प्रिपरेशन मेथड. सो यहाँ पे लेक वाटर होगा, रिवर वाटर होगा, बोरवेल वाटर होगा या फिर स्प्रिंग वाटर होगा. तो यहाँ पे सोर्सेस क्या है, अलग अलग दिखाई देंगे आपको, नेचुरल सोर्सेस या फिर लैब में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड 2H2 plus O2, क्या मिलेगा हमें 2H2O. So water may be the source of that compound or preparation method. This proportion remains constant. Let us shift towards another important law, that is law of gaseous volume. So what according to this law, when gaseous reactant combines to form gaseous product, then their combining proportion is again simple whole number ratio when measured under similar conditions of pressure and temperature. Suppose we take this example, ये वाला example लिया मैंने यहाँ पे, N2 gas plus thrice H2 gas in equilibrium with twice NH3 gaseous. Now tell me student, what are your reactant N2 and H2 present in gaseous state? What is product NH3? It is again present in gaseous state. Let us consider this one. यहाँ पे 1 वॉल्यूम यूज करेंगे, यहाँ पे 3 वॉल्यूम यूज किए, यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम मिलेंगे. तो व्हाट इज आवर प्रोपोर्शन इन दिस केस, 1:3:2. So this is nothing but simple whole number ratio according to law of gaseous volume. अगला लॉ चेक करो स्टूडेंट्स, known to be Avogadro's law. So what happened in case of Avogadro's law? So different gases when we are going to discuss, उनका वॉल्यूम यदि हमने सेम मेंटेन किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमें क्या मिलेंगे, इक्वल, when measured under identical conditions of pressure and temperature. तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग गैसेस इंडिकेट किए, गैस A, another gas is B. What about their volume? Suppose we take this much volume, 22.4 liter, here again 22.4 liter. गैसेस अलग अलग लिए मैंने, वॉल्यूम क्या लिया मैंने, कांस्टेंट. तो इनमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए A and B गैसेस के, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम, दैट इज नथिंग बट Avogadro's number of molecule. Here also Avogadro's number of molecule. तो इन सिंपल वे व्हाट वी कैन कंसिडर, गैसेस डिफरेंट हो गए, इक्वल वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या दिखाई देगा आपको, इक्वल. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ व्हिच लॉ, Avogadro's लॉ. अगला लॉ, सो उससे रिलेटेड दो टर्म हमें डिस्कस करने, कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल first term is known to be mole and second one known to be Avogadro's number. So not only JEE, NEET and CET और 11-12 class content from chemistry, but जहां तक आपका रिलेशन केमिस्ट्री के साथ होगा तब तक आपको ये दोनों टर्म बहुत ही यूजफुल हो गए, mole as well as Avogadro's number. Now in order to explain quantity known to be 1 mole, we are going to make use of Avogadro's number, and on the other hand, in order to explain Avogadro's number, we are going to make use of 1 mole quantity. So what is that mole? That much quantity of the substance which consists of this much particle. जिस क्वांटिटी में इतने पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, that quantity of substance is known to be 1 mole. And what about another term known to be Avogadro's number? It is denoted on paper as Na, Avogadro's number. So what happened in this case? It is fixed number of particle equal to, again we are going to focus on this number, that is known to be Avogadro's number. And इतने सारे पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट हो गए स्टूडेंट? These are present in 1 mole of the substance. So substance का 1 mole लेंगे तो हमें इतने पार्टिकल दिखाई देंगे, इतने पार्टिकल जिस क्वांटिटी में होंगे उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मोल. So in order to explain these two terms, let us shift towards few examples that will explain both mole as well as Avogadro's number. तो चेक स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हर एक केस में मैंने कितना क्वांटिटी लिया है, 1 मोल. 1 मोल सोडियम, 1 मोल K+, 1 मोल CO2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. सो ड्यू टू 1 मोल क्वांटिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट में भी मैंने इक्वल नंबर यहाँ पे रिटेन किया, 6.02 10⁻23. तो ओनली फोकस करो यहाँ पे, दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम, सो इट कॉम्प्राइजेस दिस मच एटम.
Another one mole of K plus, this comprises this much K plus ion. What about next entity CO2? तो वहां पे आपको इतने सारे मॉलिक्यूल दिखाई देंगे एंड लास्ट केस में आपका पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट? जब भी क्वांटिटी 1 मोल होगा तो पार्टिकल का नंबर सेम होगा, पार्टिकल में भी डिफरेंट. जैसे कि यहाँ पे एटम्स थे, यहाँ पे आयंस, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म, मोल एज वेल एज अवोगाड्रोस नंबर. शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें डिस्कस करने हैं. उसमें से पहला डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज दैट स्टूडेंट? एटॉमिक मास. Whenever we are dealing with 1 mole of element, we are dealing with this term known to be atomic mass. So how to find out atomic mass? It is nothing but simply ratio. कौन सा ratio? Mass of one atom of element to the 1/12 mass of carbon 12 atom. So this ratio explain you term that is known to be atomic mass. आगे चल के हमें ये सभी terms इस्तेमाल कर रहे हैं. So try to remember definition part. अगला डेफिनेशन कंसिडर करेंगे हम लोग स्टूडेंट, ग्राम एटॉमिक मास. सो व्हाट इज GAM? इट इंडिकेट ग्राम एटॉमिक मास. सो फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन व्हिच यूनिट? ग्राम. दैट सिंपली बिकम ग्राम एटॉमिक मास. But instead of this simple definition, two important definitions are we are going to consider. What is first one? The mass of 1 mole of atoms of element. कितने atoms लेने हमें? 1 mole atom. That mass is also known to be gram atomic mass. Then replace this 1 mole of atom by Avogadro's number. So 1 mole में कितने सारे atoms हो गए? 6.02 10 raised to 23. So that mass is also known to be gram atomic mass. In similar way, we are going to discuss next two important terms. अगला टर्म चेक करो स्टूडेंट, gram atomic mass. So for problem purpose, try to remember this one. One atomic mass unit nothing but 1.66 10 raised to minus 24 gram या फिर 1.66 10 raised to minus 27 kg. So these two terms we are going to make use in numerical based questions. So this is another important relation. अगला पॉइंट चेक करो, similar to atomic mass, another important term we are going to consider. What is that? Molecular mass. जैसे कि 1 मोल हम लोग कंसिडर करेंगे सब्सटेंस या कंपाउंड के बारे में, तो हमें ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज दैट? रेशियो ऑफ 1 molecule of compound to 1/12 mass of carbon atom. So this ratio gives you molecular mass. अभी जैसे एटॉमिक मास में हमने 3 अलग अलग डेफिनेशन सेट किए थे, उसी हिसाब से ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी हमें 3 अलग अलग डेफिनेशन सेट करने. जैसे कि एज पर नेम ऑफ द स्पेसिस इटसेल्फ, व्हाट हैपन? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस इन व्हिच यूनिट? ग्राम. दैट सिंपली बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अभी इसी टर्म को हम लोग दूसरे दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि पहले केस में हमने डिफाइन किया था, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज आल्सो नोन टू बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास. व्हाट अबाउट दिस वन? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? Avogadro's number of molecule. So that again gives you third important definition. So these two important definitions we are going to make use in numerical based question. इसी सेगमेंट में अगला टर्म चेक करो स्टूडेंट, नोन टू बी GMV, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. What happened? Whenever we are dealing with 1 mole of gas at STP, that is standard temperature and pressure, then that 1 mole of gas always occupies this much volume. What is that? 22.4 liter. या कुछ एक ऑब्जेक्टिव में आपको लीटर की जगह पे ml दिया जाएगा. So what we can write? 22,400 ml. So try to remember this another important relation in order to calculate volume या फिर कैलकुलेट मोल या फिर कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ गिवन स्पेसिस. अगला पॉइंट, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज चार्ज? नेगेटिव.
1.6 10 raised to minus 19 and आपको पता है what Avogadro's number 6.02 10 raised to 23. So चार्ज को मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया या फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन 1 Faraday it is equal to 96,500 coulomb. So remember student, this important relation we are going to make use in class 11 chapter redox reaction and class 12 chapter known to be electrochemistry. 1 Faraday 96,500 coulomb. अगला point, this is another important segment from chemistry known to be stoichiometry. तो stoichiometry का word to word meaning यदि हम लोग consider करेंगे तो ट्राई टू रिमेंबर दिस टू टर्म. स्टाइकियन का मतलब क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट. और मेट्रिक का मतलब क्या है? एक तरह का मेजरमेंट होगा. सो दिस इज नथिंग बट स्टाइचियोमेट्री. तो इंस्टेड ऑफ दिस टू टर्म, स्टाइकियन स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, मेट्रिक स्टैंड फॉर मेजरमेंट, वी आर डीलिंग विद दिस इंपॉर्टेंट टर्म. Which process is known to be stoichiometry? Process जिसमें हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन. और एक क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीजें की जरूरत है. उसमें से पहला व्हाट इज फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड एंड अनदर वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो कौन से भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यदि हम लोग कंसिडर करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको पता है, तो वन कैन इजीली डिटरमाइन स्टाइचियोमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन पार्ट. अभी इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म हमें डिस्कस करने जरूरी है. व्हाट इज दैट? First one known to be stoichiometric coefficient. So in order to explain this stoichiometric coefficient, let us check this example. What I am going to write here: 2N2 gaseous plus 6H2 gaseous in equilibrium with 4NH3 gaseous. Now check student. 2 2s are 4 nitrogen, 4 nitrogen. 6 2s are 12 hydrogen, 4 3s are 12 hydrogen. So in this case, N2 and H2 become our reactant side. What about this one known to be product side? So यहाँ पे N2 के लिए कोएफिशिएंट क्या है? 2. H2 के लिए कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? 6. एंड NH3 के लिए कोएफिशिएंट क्या इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? 4. Sorry, this one. So 2, 6 and 4. These are nothing but stoichiometric coefficient. So what we can consider student? Those coefficients which are used for reactant and product. कहाँ पे? In balanced chemical equation. So such type of coefficients nothing but stoichiometric coefficient. जब भी आपका दिया हुआ equation change होगा तो obviously reactant and product के coefficient भी क्या होंगे? Differ होंगे. अगला point. तो आफ्टर कंसिडरिंग स्टाइचियोमेट्री डेफिनेशन, दो इंपॉर्टेंट रीजन आपको केमिस्ट्री में पता होने जरूरी है. इनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट का क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसमें से पहला रीजेंट क्या है स्टूडेंट? लिमिटिंग रिएजेंट. सो एज पर नेम इटसेल्फ, दैट रिएक्टेंट और द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी. एंड व्हाट अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच गेट टोटली कंज्यूम्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन and it going to control amount of product obtained. So that type of reagent is called as limiting reagent. अभी कॉन्वर्स केस यदि हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, अनदर इंपॉर्टेंट रिएजेंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे एक्सेस. तो एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या है? विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एंड नॉट डिसाइड प्रोडक्ट क्वांटिटी, दैट रिएजेंट बिकम एक्सेस रिएजेंट. So after this, let us start with another important segment known to be formula determination. कुछ एक एमसीक्यू में स्टूडेंट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव में आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट सेगमेंट आपको अलग अलग डेफिनेशन पता होने जरूरी है. इसमें से फर्स्ट टर्म इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज दैट? एम्पिरिकल फॉर्मूला. अभी दैट केमिकल फॉर्मूला व्हिच गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट? हमें सिंपलेस्ट रेशियो प्रोवाइड करेगा. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो लेट अस चेक दिस सिंपल एग्जांपल. सपोज मैंने बेंजीन का एग्जांपल दिया स्टूडेंट आपको. तो बेंजीन में दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है. कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो दिस C(H) या फिर सिंपली CH इंडिकेट व्हिच फॉर्मूला फॉर बेंजीन? एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन. तो इसी हिसाब से अगला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे.
इसी एग्जांपल के रिस्पेक्ट में नोन टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी एम्पिरिकल फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या पता चलो स्टूडेंट, ईच बेंजीन मॉलिक्यूल कॉम्प्राइजेस ओनली टू एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, वो हमें यहां से पता चलेगा। सो दैट केमिकल फॉर्मूला व्हिच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, that is called as molecular formula. So फिर से मैंने सेम एग्जांपल रिपीट किया। बेंजीन, what is molecular formula? C6H6. What it indicate? Each benzene molecule consists of 6 carbon and 6 hydrogen. So this is another important term, molecular formula. अगला टर्म चेक करो स्टूडेंट्स, empirical formula weight. तो what do you mean by empirical formula weight स्टूडेंट? कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो उसका यूज करके हम लोग क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो लेट अस स्टार्ट विद सेम एग्जांपल। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? CH। अभी आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, सो दिस टोटल कम्स इक्वल टू 13। सो 13 नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट किसका? बेंजीन। इसी हिसाब से अगला फोर्थ टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, नोन टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, दैट इज MFW। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना है स्टूडेंट हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो टोटल सम हम लोग डिस्कस करेंगे MFW, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। Now tell me, how many carbon atoms are there? 6, each having 12. How many hydrogen? 6, each having 1. So this total comes equal to 72 plus 6, that is equal to 78. And this 78 nothing but molecular formula weight in case of which one? Benzene. Okay? अगला टर्म चेक करो स्टूडेंट, relation between two important terms. Which one? What is molecular formula and empirical formula relation? So this is important relation we are going to make use in objective. Molecular formula यदि आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली इंटीजर n को हम लोग empirical formula से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगेन क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड आउट दिस इंटीजर n। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिलेशन दिया है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन empirical formula weight। ओके, so let us shift towards another important point. What is that? What are the various steps involved in determination of empirical formula? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला? चेक स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंटल परसेंटेज। व्हाट इज दैट? व्हाटएवर मे बी द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन इन प्रॉब्लम, you have to make that total sum, and if that total sum is not equal to 100, remaining will be the percentage of which element? Oxygen. So by determining elemental percentage, you will get idea what type of element present in given compound. After this, second term is to be determine atomic ratio. तो एटॉमिक रेशियो हर एक एलिमेंट का हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? एटॉमिक वेट, एंड दैट प्रोवाइड यू एटॉमिक रेशियो। आफ्टर डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेशियो, दूसरा एक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है विच इज नथिंग बट सिंपल एटॉमिक रेशियो। तो सेकेंड टर्म में हमने जो भी वैल्यूज फाइंड आउट किए एटॉमिक रेशियो के, उसमें से लोएस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, एंड फिर से एटॉमिक रेशियो को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? लिस्ट एटॉमिक रेशियो, दैट प्रोवाइड यू सिंपल एटॉमिक रेशियो। एंड व्हाट इज लास्ट स्टेप? डिलीशन ऑफ फ्रैक्शन। यदि आपका सिंपल एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में होगा तो हम लोग स्पेसिफिक नेक्स्ट राउंड डिजिट या फिर स्पेसिफिक प्रीवियस डिजिट लेंगे, या फिर थ्रूआउट सभी को मल्टीपल कोएफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, सो दैट फ्रैक्शन विल गेट डिलीटेड एंड यू विल गेट number of atoms of each and every element, and that provide you empirical formula.